Hi everyone, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the lecture number 9 of the chapter Aldehydes, Ketones, and Carboxylic Acids in Chemistry. So, till now, we had we have completed off the nomenclature, that is, using the both IUPAC nomenclature as well as the common system nomenclature of aldehydes and ketones. After that, we finished off with the preparation of aldehydes and ketones using all the techniques possible. Then we discussed the physical properties, and then we moved on to the chemical reactions of aldehydes and ketones. So we had talked about in those chemical reactions, like we divided it into several categories. So the first category was the nucleophilic addition reaction, where we discussed the addition of hydrogen cyanide, the addition of sodium hydrogen sulfide, the addition of Grignard reagent, the addition of alcohols, and the addition of ammonia and its derivatives. Okay, so there also we discussed we created a table with the reagent name and the product name. So the number of products, there were number of products which were very different, like you must have heard for the first time. So you should be aware of the structures of those products. They were important. Uh, then the second category in the chemical reactions was a reduction of aldehydes and ketones. So there, the first thing that we discussed was the reduction of aldehydes and ketones to the alcohols using the catalytic hydrogenation part, as well as using the sodium borohydride, or which is also known as NaBH4, the formula, or, or the lithium aluminum hydride, which is LiAlH4. Okay. So as we discussed that these are very good reducing agents, that is NaBH4 and LiLH4. तो जब भी आप ये दो reagents देखो, so they are always used as the reducing agents in the organic chemistry. तो वहाँ पे बस आपको reduction perform करना है ना? Then there was the reduction to the hydrocarbons. ठीक है, तो the reduction is of two types. The aldehydes and ketones, they can either be reduced to the alcohols, उसके लिए reagent अलग है, और they can also be reduced to hydrocarbons, and उसके लिए reagents जो है वो different हैं. So reduction to the hydrocarbons में we talked about the Clemmensen reduction, and Clemmensen reduction में क्या होता है कि they react with the zinc amalgam and the concentrated hydrochloric acid. ठीक है, और उससे डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन बन जाता है, मतलब डबल बॉन्ड O जो होता है, मतलब C डबल बॉन्ड O जो होता है, that gets converted to CH2. Then the second category was the Wolff-Kishner reduction. ठीक है, so Wolff-Kishner reduction में they are reacted with hydrazine, and then they are heated with sodium or potassium hydroxide. ठीक है, so after that we also get the hydrocarbons. So the second category was the reduction. Now third category was oxidation. ठीक है, तो oxidation में we know that aldehydes and ketones, they are oxidized to the carboxylic acids. ठीक है, तो first we discussed about the oxidation of aldehydes. So because they are easily oxidized to the carboxylic acids on treatment with the common oxidizing agents like HNO3, KMNO4, K2Cr2O7. ठीक है, also now these were the stronger oxidizing agents. So इसमें तो directly वो convert हो ही जाएंगे, लेकिन like while we are talking about the mild oxidizing agent, so we discussed about two important mild oxidizing agents. First was the Tollens reagent and the other was the Fellings reagent. ठीक है, so we discussed the reactions in detail. Coming to the ketones, ketones are also oxidized under the vigorous conditions. ठीक है, so they need strong oxidizing agents. And why does that happen? Because ketones में, क्योंकि because you have both the groups, you have two groups on either side of the carbonyl carbon. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होके अल्कोहल, वो ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना इज नॉट पॉसिबल. दैट इज व्हाई देयर इज हैव टू बी द क्लीवेज ऑफ द सीसी बॉन्ड. ठीक है, तो कोई भी दो सीसी बॉन्ड्स का क्लीवेज होना जरूरी है, जो भी कार्बोनिल कार्बन से लगे हुए हैं, कार्बन अल्फा कार्बन. तो दैट क्लीवेज इज important, and because of that we need vigorous conditions, मतलब high temperature and the strong oxidizing agents. ठीक है, after that we moved on to the tests which are used to distinguish the aldehydes and ketones. ठीक है, तो उसमें we discuss the Tollens test, the Fellings test,
ठीक है, तो बिकॉज बोथ ऑफ दीज टेस्ट दे गिव द डिफरेंट kind of products when they are treated with aldehydes and ketones. ठीक है, so because of this different kind of product we can use these tests. These are the laboratory tests, so we can use these in the laboratory to distinguish the aldehydes and ketones. ठीक है, तो let me just revise this with you. So in the tolerance test, what happens is, so the first tolerance test, इसमें what we do is we simply warm the aldehyde with freshly prepared tolerance reagent. ठीक है, और tolerance reagent हमने पढ़ा था क्या होता है, it is simply ammoniacal silver nitrate. ठीक है, तो जो reaction that we discussed was कि सपोज करो आप एल्डिहाइड को टॉलेंस रीजन से करवा रहे हैं, सो बिकॉज द टॉलेंस रीजन इज अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट. ठीक है, आई एम ओनली राइटिंग द आयनिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, दिस इज सिल्वर एंड दिस इज देयर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस. ठीक है, तो आफ्टर दिस कंप्लीट इज द टॉलेंस रीजेंट. ठीक है, व्हाट प्रोडक्ट डू वी गेट इज COO माइनस प्लस 2 Eg to water and ammonia. These are the byproducts. ठीक है, now the thing that we use in the test is this thing. मतलब obviously बात है कि tolerance reagent is an oxidizing agent. ठीक है, it is a mild oxidizing agent, तो aldehyde से carboxylic acid तो बनेगा ही. But the twist here is that because यहाँ पे the product is silver, this is silver, so in the laboratory when you are doing this test, a bright silver mirror is produced. ठीक है, and this test is only given by the aldehydes, मतलब ketones do not give this test. ठीक है, so that is why, like अगर आपको पता नहीं है, आपके पास वो कोई एक कंपाउंड है and you need to find out कि ये aldehyde है या फिर ketone है. ठीक है, तो उस कंपाउंड में you simply treat that compound with the tolerance reagent or the Fellings reagent. ठीक है, and if you are getting the silver mirror with that compound with the tolerance reagent, then that means that is an aldehyde because ketones do not give this test. ठीक है, सिमिलरली फेलिंग्स टेस्ट भी हमने डिस्कस किया था. फेलिंग्स टेस्ट में वी हैव टू reagents known as Fellings solution A and B, and then we need to mix these two in the equal amounts. ठीक है, तो also when we heat aldehyde with the Fellings reagent, a reddish brown PPT, जैसे यहाँ पे सिल्वर का PPT बना है, वैसे यहाँ पे Fellings reagent के केस में you get copper oxide PPT that is reddish brown in color. वो सिल्वर कलर का होता है and this is reddish brown. PPT is obtained. ठीक है, तो इफ यू आर गेटिंग रेडिश ब्राउन पीपीटी, देन यू कैन सिंपली से कि दैट कंपाउंड वाज एल्डिहाइड. ऑल्सो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट. तो ये वाला टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए भी नहीं यूज होता है. ठीक है, अच्छा, वन थिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व हियर इज कि इफ वी वांट टू डिस्टिंग्विश एनी like aromatic aldehyde and a normal aliphatic aldehyde, ठीक है, तो also we can use both of these tests together. क्योंकि aromatic aldehyde will not give the Fellings test, लेकिन aliphatic aldehyde will give the Fellings test. मतलब aliphatic aldehyde के साथ में you will get the reddish brown precipitate, while using while using the aromatic aldehyde you will not get any precipitate. ठीक है, so these are the ways in which you can from which you can distinguish aldehydes and ketones as well as aldehydes and aromatic aldehydes. Also we discussed about the haloform reaction as one of the tests to distinguish. So now, like whatever we had discussed today in this class, we will first start with some questions just for the purpose of revision, so that you are able to revise whatever we had already discussed in the previous lectures. There are 3 to 4 questions, so let's do the. So in this, the reactant is cyclohexane carbaldehyde, and the reagents are also given to you. ठीक है, so in all of these questions जो एक common हमारा reactant है वो क्या है? This is the common reactant. And now I will tell you the reagents that are to be treated with this reactant, and you need to tell me the product. First of all, what is this? This is cyclohexane carbaldehyde. ठीक है, तो the structure would be this. So the first reagent is pH
MgBr, and then hydrolysis, acetic hydrolysis. ठीक है, तो obviously you can see that this is MgBr, मतलब this is a Grignard region. So where like we learned to the like when we discussed about the addition, the nucleophilic addition, so that was one portion of addition of to the Grignard reagent. ठीक है, तो वहीं पे simple reaction होता है, we simply have to add this the portions of the Grignard reagent. So let's discuss कैसा होगा. ये हमारा reactant हुआ, and when you react this with the Grignard reagent in dry ether is simply used as a solvent. It does not take part in the reaction. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है. तो क्या होगा कि दिस पीएच will get attached to this carbon atom, this carbonyl carbon atom, and this MgBr will get attached to O, the oxygen of this carbonyl carbon atom. तो जो प्रोडक्ट होगा आफ्टर एडिशन क्या होगा, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन सेज यू हैव टू do the acidic hydrolysis of this addition product. ठीक है, तो आफ्टर दिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस व्हाट विल हैपन, सिंपली MgBr की जगह पे H आ जाएगा, OH. ठीक है, so now the final product would be also what will be the name of this product, because this is not benzene ring. ठीक है, अगर यहाँ पे double bonds होते so that would have been benzyl, but because it is cyclohexane, so this will be cyclohexyl phenyl hexyl phenyl carbinol. ठीक है, this is the name of this. Now the second reagent is tolerance reagent. We have discussed this just now, but because our reactant is different, so I'm going to write down the reaction properly. Okay, so what will you do, because you should always remember कि tolerance reagent simply carbonyl group को like जो हमारा CHO है उसे carboxylic acid में oxidize कर देता है. So this will be COO minus, and this reaction is applicable for all types of aldehydes. ठीक है, तो जितना भी complex aldehyde अगर आपको given है question में, तो आपको उस complex aldehyde से भी you like don't have to get scared. Simply आपको CHO group को COOH में convert कर देना, ammonia, and these are the byproducts. ठीक है, coming to the third reagent. The third reagent is semicarbazide and then weak acid. So what is semicarbazide? That we discussed it when we were discussing the addition of ammonia and its derivatives. ठीक है, तो semicarbazide is a derivative of ammonia. अमोनिया के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, लाइक अमोनिया इज NH3. ठीक है, तो आप उसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन एटम को व्हेन यू रिप्लेस दैट हाइड्रोजन विद सम अदर ग्रुप, देन उसे हम लोग बोल देते हैं डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. आपको you should, these are the important reagents, you should always remember the formula or the structure of these derivatives. तो वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेनी अ टाइम्स द क्वेश्चंस दे हैव बीन आस्क्ड. ठीक है, तो ये आपका NH2 है, और जो एक और H है अमोनिया का उसको रिप्लेस करके वी हैव एडेड दिस ग्रुप NHCO NH2. ठीक है, so we have added this group, we have replaced the hydrogen of this ammonia with this group. तो ये डेरिवेटिव हो जाता है, एंड दिस नेम इज सेमी कार्बाजाइड. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड, एंड द प्रोडक्ट वुड बी सिंपल. यहाँ पे भी एडिशन रिएक्शन है, तो डबल बॉन्ड O की जगह पे यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला यहाँ वाला डबल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, so the product would be, I'm writing the product directly, you simply have to copy that compound. ये पूरा ग्रुप जो है देखो आप सेम है, ये वाला जो ग्रुप था जो डेरिवेटिव में ऐड हुआ है वो बिल्कुल सेम है. और सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है कि ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है, लेट मी मार्क इट विद रेड. ये सारे रिएक्शंस में क्या होता है, जो डेरिवेटिव वाले रिएक्शंस है उनमें ये वाला जो ऑक्सीजन है और ये वाले जो दो हाइड्रोजन है ये दोनों रिमूव हो जाते हैं. ठीक है, दे गेट रिमूव, तो ये H2O चला जाता है, दैट्स द बाय प्रोडक्ट. एंड बाकी का जितना भी कंपाउंड है इट सिंपली गेट्स एडेड टू दिस कार्बोनिल कार्बन. तो साथ में दिस वाटर विल आल्सो बी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज एक्सेस ऑफ इथेनॉल एंड acid. So excess ethanol, why we are not just mentioning ethanol, because we simply want to say
एक्सेस का मतलब है कि इथेनॉल के मॉलिक्यूल, बिकॉज मोर देन वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल इज टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल रिएक्शन। एक रिएक्शन में ही एक मॉलिक्यूल से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। बस ये लाइक दिस एक्सेस इज जस्ट यूज टू सिग्निफाई दैट। ठीक है, तो जब भी एक्सेस आपको यूज हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि ये कोई स्पेशल रिएक्शन है जिसमें सिर्फ अल्कोहल का यूज नहीं है। मल्टीपल मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल आर बीइंग यूज्ड। डबल बॉन्ड O. Now I am writing this reaction in a specific way just to show you कि किस तरीके से water removal possible है। I mean it is C2H5OH. I am writing it backwards to show you कि जो removal हो रहा है वो किधर से हो रहा है। This oxygen and these two hydrogen they are getting removed। ठीक है, तो ये water molecule remove हो रहा है and the product is simply addition product। This is the carbon। तो यहाँ पे you will have O(C2H5) क्योंकि H तो remove हो गया है, तो बाकी कंपाउंड क्या बचा, O(C2H5) and यहाँ पे भी you will have O(C2H). Okay, so जैसा in the case of ammonia derivatives the reaction was very easy। ठीक है, मतलब द रिएजेंट माइट बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखने में बहुत बड़ा रिएजेंट हो सकता है, बट फाइनली आपको क्या करना है, यू सिंपली हैव टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल एंड ऐड द रेस्ट ऑफ इट। ठीक है, यहाँ पे भी हम सिमिलरली वही कर रहे हैं। यहाँ पे भी वी नीड टू रिमूव दिस वाटर मॉलिक्यूल और बाकी के कंपाउंड को ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा आई ऑल्सो राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इट इज साइक्लोहेक्स। पहली बात तो आप साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड में कर रहे हैं, सो दैट इज वाई वो वाला नाम विल बी रिटेन्ड, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड डाइइथाइल acetal। Now the next one is the reaction with zinc amalgam, zinc Hg। Hg is mercury। ठीक है, तो I told you like why we were discussing this, that amalgam means like if we are saying zinc amalgam, so it means zinc has been used with mercury। So you must have now got to understand that this zinc amalgam with HCl, this is the reagent that is used, this is a special kind of reagent because it is used in a special named reaction, that is Clemmensen reduction। ठीक है, तो ये जो पूरा कंपाउंड, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, that is uh, that is used in the Clemmensen reduction and it is a reducing agent। ठीक है, तो reducing agent में क्या होगा, this simply CHO group simply gets converted to this is methyl cyclohexane। ठीक है, and the name of this reaction is Clemmensen। So just after this we also discussed some one another special named reduction reaction, this was Wolff-Kishner reduction। ठीक है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए, that one is also important। So this was all about the questions। Now today the new topic would be, like we have covered three kind of chemical reactions। ठीक है, nucleophilic addition reaction, reduction reaction and oxidation reactions। Now today we'll start with the fourth category of chemical reactions, that is now let me write it down first, the reactions due to alpha hydrogen। This is the this is the fourth category that we are discussing, due to alpha hydrogen। ठीक है, तो so before starting with this let me tell you what is alpha hydrogen। एज आई टोल्ड यू कि ये अगर हमारा कार्बोनल कार्बन है, ठीक है, अब इधर उधर कुछ भी हो सकता है बिकॉज इट कैन बी अ कीटोन टू। तो सपोज करिए यहाँ पे दो कार्बन है। ठीक है, सो ये वाला जो कार्बन है दिस इज कॉल्ड दी कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि हम कौन से कार्बन को क्या रेफर कर रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में दे ऑलवेज दे 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 विल नॉट एक्सप्लेन यू एवरी टाइम whenever they will use that term। ठीक है, they will explain you once and then in the entire chapter they will keep on repeating that term। तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज को रेफर कर रहे हैं। तो दिस कार्बन इज नोन एज कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, जिससे कि डबल बॉन्ड रो लगा हुआ है। फिर उसके जो बगल द कार्बन विच आर अटैच्ड टू दिस कार्बोनिल कार्बन, दे आर कॉल्ड द अल्फा कार्बन। मतलब विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बोनिल कार्बन, इन्हें हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, ना सपोज करो इस कार्बन से एक और कार्बन लगा हुआ है, तो दिस कार्बन विल बी कॉल्ड एज बीटा कार्बन। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरीके का मतलब ये सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए ही नहीं है। दिस काइंड ऑफ नॉमेनक्लेचर, दैट इज दीज काइंड ऑफ सिंबल्स, दे आर गिवन फॉर एवरी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे आप तो उसमें अल्फा और बीटा इसी तरीके से नेमिंग होती है कार्बन्स की। ठीक है, तो बिकॉज दिस इज अल्फा कार्बन, सो दिस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे,
सपोज करिए इस केस में 2 हाइड्रोजन है, तो दीज 2 हाइड्रोजन दे विल बी नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। और सपोज करिए इस वाले अल्फा कार्बन में कुछ नहीं, लाइक सम अदर ग्रुप हैज बीन अटैच्ड और दिस कार्बन डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन, तो वी विल से कि दिस अल्फा कार्बन डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर होना चाहिए कि हम कौन से हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। फाइन। So now let me tell you that this alpha hydrogen of the carbonyl carbons is acidic in nature. Acidic मतलब easily removable। और हाइड्रोजन एसिडिक है मतलब इट कैन बी रिमूव्ड easily, वो हट जाता है आसानी से कंपाउंड में से। एंड ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। मतलब आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर that would be easier for you to understand. This is the carbonyl carbon, this is the alpha carbon, and this is the hydrogen which is attached to the alpha carbon। ठीक है। तो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है अल्फा कार्बन से, दैट इज नोन एज द अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। तो सपोज करिए कोई बेस है जिससे कि हम रिएक्शन करवा रहे हैं, बेस मतलब दैट सिंपली बॉन्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ओ जो होता है वो ऑक्सीजन एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। आई हैव told you so many times in these previous lectures that this oxygen and carbon have very high electronegativity difference। ठीक है। सो जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है वो बहुत uh, अच्छा होता है, लाइक बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है। सो ये अपनी तरफ एट इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, जिसकी वजह से ये वाले जो, इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींचा। ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रुप के, वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स उसके पास चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस रिड्यूस हो जाएंगे दैट मीन्स जो सी एच बॉन्ड होगा, हम इस सी एच बॉन्ड के बारे में बात करें, इस हाफ हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के बारे में, ये वाला, दिस सी एच बॉन्ड विल बिकम वीकर इन नेचर। ठीक है। तो ये वीक हो जाएगा, और जब वीक हो जाएगा तो इट कैन बी इजिली रिमूव्ड। ठीक है। वो आसानी से ब्रेक हो सकता है, हाइड्रोजन कैन बी इजिली रिमूव्ड। एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ वी आर यूजिंग अ बेस, वो इस हाइड्रोजन को बेस क्या होता है? एज आई टोल्ड यू, एसिड्स आर द कंपाउंड्स विच कैन इजिली विच कैन इजिली गिव अवे देयर हाइड्रोजन एटम। ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं? वो अपना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन के बारे में बात हो रही है, प्रोटॉन को इजिली गिव अप कर देते हैं। और वैसे ही कन्वर्सली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेसिस, दे कैन इजिली अट्रैक्ट द हाइड्रोजन और दे कैन इजिली टेक अप द हाइड्रोजन और द प्रोटॉन टू देमसेल्व्स। ठीक है। तो वो प्रोटॉन को अपनी तरफ, लाइक दे टेक अप दैट प्रोटॉन, मतलब हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेंगे। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज वीकर इन नेचर एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, because of that this carbon hydrogen bond is weaker, and that is why this base, when this compound is reacted with the base, this base we can easily take up the hydrogen atom, this alpha hydrogen atom। ठीक है। so that is why we say that this carbonyl compounds जो होते हैं they have the alpha hydrogen, and this alpha hydrogen is acidic in nature। alpha hydrogen is acidic in nature, मतलब CH bond is weak, alpha hydrogen can easily be removed। ठीक है। बस आपको यही याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना सबसे आसान होता है एज कम्पेयर टू अदर हाइड्रोजन। ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। एक कंपाउंड में मल्टीपल अल्फा हाइड्रोजन हो सकते हैं, पॉसिबल है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड। ठीक है। तो हम यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर बेस आएगा तो इट विल ऑलवेज टेक अप द अल्फा हाइड्रोजन ओनली बिकॉज दैट दैट बॉन्ड इज वीकर। वो बीटा हाइड्रोजन को लेके नहीं जाएगा। ठीक है। एंड ऑल्सो द बिकॉज ऑफ दिस द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज ऑल्सो देयर। ठीक है। तो एज यू कैन नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि जो हाइड्रोजन जाएगा वो कहाँ से जाएगा, दैट वुड बी अल्फा हाइड्रोजन। सो इन दिस कैटेगरी वी विल डिस्कस 2 reactions। फर्स्ट इज द aldol condensation,
एंड द सेकेंड वन इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो स्टार्ट विद द एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहला वाला है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। द नेम यू मस्ट हैव heard it the first time। तो इसमें क्या होता है कि aldehydes and ketones which have at least one alpha hydrogen, they will undergo a reaction in the presence of dilute alkali as a catalyst to form the beta hydroxyaldehyde, which is known as aldol. Or like if ketones are reacting, then they will form beta hydroxy ketones, which are also known as ketol। ठीक है, तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं आपके पास, ठीक है, एंड यू आर रिएक्टिंग लाइक दे मस्ट बी हैविंग, पहली बात तो पहला तो ये जो कंडीशन है कि दे मस्ट बी हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तभी ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो दे मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एंड यू विल हैव टू हैव द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। ठीक है, डाइल्यूट में लाइक यू कैन हैव डाइल्यूट NaOH और यू कैन हैव डाइल्यूट KOH। ठीक है, और यू कैन हैव डाइल्यूट BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यू मस्ट हैव अ डाइल्यूट अल्कली एंड दैट अल्कली विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि डाइल्यूट अल्कली तो कैटलिस्ट है, दैट मीन्स इट विल नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, तो रिएक्शन होगा किसके साथ? So the thing here is that actually, like if we are using aldehyde, so the two molecules of aldehyde will react with each other, and similarly the two molecules of ketones will react with each other। ठीक है, तो इसमें कोई और reagent नहीं है। ठीक है, you are not having any other reagent for the reaction purpose। सिंपली आपके पास जो aldehyde है उसी के दो molecules आपस में react कर रहे हैं। ठीक है, और जो alkali हम यूज कर रहे हैं वो हमारा एज अ कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लाइक आई टेल यू कि एल्कली हम क्यों ऐड कर रहे हैं और वो कर क्या रहा है। बट एल्कली इज नॉट अ रिएजेंट, ये बात याद रखना है आपको कि एल्कली एज अ रिएजेंट यूज नहीं हो रहा, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो लेट मी सिंपली राइट इट डाउन हियर कि पहली बात तो इम्पोर्टेंट क्या है, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। आई एम राइटिंग एटलीस्ट बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि कंपाउंड कंपाउंड डिफर करेगा, देयर कैन बी मल्टीपल अल्फा हाइड्रोजन, बट एक तो होना चाहिए तभी वो रिएक्शन आगे करेगा, वही अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। दूसरी चीज important here is dilute alkali catalyst, it is not a reagent। ठीक है, it is used as a catalyst। Now what I am telling you is suppose I will simply I'll first write down the reaction, that will be more easier for you to। as I said कि दो molecules of aldehyde आपस में react कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो okay I'll remove this two। I'll show you कि process कैसा हो रहा है, दो molecules आपस में कैसे react कर रहे हैं। ठीक है, एक molecule ये है आपका एंड दूसरा molecule ये है, सेम aldehyde है आपके पास। ठीक है, एंड यू आर रिएक्टिंग इट विद इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सपोज NaOH। so नाउ व्हाट हैपेंस इज डाइल्यूट NaOH क्या करता है, ये बेस है, जैसा एज आई टोल्ड यू कि इट इज अ बेस। बेस क्या करता है, वो से हाइड्रोजन लाइक इट कैन टेक अप द हाइड्रोजन इजीली। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन मतलब इट विल बी सर्चिंग फॉर द हाइड्रोजन, ऐसा सोचिए आप कि जो बेस होगा इट विल बी सर्चिंग फॉर द हाइड्रोजन। अब इन कंपाउंड्स में यू हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एंड अल्फा हाइड्रोजन इज एज यू नो एसिडिक, सो जो बेस होगा दैट विल सिंपली टेक अप द एसिडिक हाइड्रोजन विच इज द अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, जो इस कार्बन से हाइड्रोजन लगे हैं ना इन दोनों तरफ, दे आर द अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो टोटल इफ यू टॉक अबाउट अल्फा हाइड्रोजन देयर आर सिक्स अल्फा हाइड्रोजन इन बोथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स कंबाइंड। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में तीन अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो बेस होगा ये एक अल्फा हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, सो मैंने और जो बाकी का कंपाउंड होगा लाइक वो कंबाइन हो जाएगा। कैसे, तो ये वाला जो एक अल्फा हाइड्रोजन होगा इस कंपाउंड से दैट विल बी टेकन अप बाय द बेस एंड बाकी दोनों कंपाउंड्स दे विल ऐड टुगेदर। तो क्या हुआ कि एक अल्फा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ वाले मतलब इस वाले मॉलिक्यूल से एक अल्फा हाइड्रोजन निकल के इट इज सिंपली गोइंग ऑन टू ऐड टू द ऑक्सीजन ऑफ द अदर कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, तो हो क्या रहा है, एक मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ में लग जाएगा, बस इतना हो रहा है। ठीक है, तो यू हैव टू जस्ट सिंपली ऐसे ही आपको समझना है इस चीज़ को कि अल्फा हाइड्रोजन क्योंकि एसिडिक है तो एक मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ में जाके, तो बेसिकली
like if I want to draw the structure, डबल बॉन्ड O है, ठीक है। यहाँ पे भी यू हैव दूसरे वाले मॉलिक्यूल का, सपोज करिए ये वाला अल्फा हाइड्रोजन जो है वो निकल रहा है, ठीक है। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन जाके क्या होगा, इस वाले दूसरे पहले वाले मॉलिक्यूल पे के ऑक्सीजन, कार्बोनिल कार्बन पे जो ऑक्सीजन है उस पे जाके लग जाएगा। तो हमारा जो और जो बाकी के दोनों कंपाउंड्स हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स है, दे विल सिंपली गेट एडेड। कैसे, ये CH3 है, इस वाले O पे जाके हाइड्रोजन लग चुका है तो ये OH बन गया, मतलब अल्कोहल ग्रुप हो गया। और ये हमारा CH है ऑलरेडी था, ठीक है। एंड दिस इज CH2, ऑलरेडी यहाँ पे दो हाइड्रोजन बच रहे हैं और यहाँ पे CHO है, ठीक है। तो मतलब ये हाइड्रोजन गया यहाँ पे O के साथ में अटैच हुआ जाके, और इस कार्बन और इस कार्बन में आपस में अटैच हो गए, बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो प्रोडक्ट बना है ना इससे, दिस इज नोन एज एल्डोल। ओके, फर्स्ट लेट्स राइट डाउन द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है। क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का प्रेफरेंस ज्यादा होता है टेबल पे, है ना। एल्डिहाइड का जो एक रेफरेंस टेबल होती है उसमें एल्डिहाइड इज गिवन अ हायर रैंक, इस वजह से एल्डिहाइड विल बी द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एंड ये वाला विल बी द सेकेंड, द अल्कोहल ग्रुप विल बी द सेकेंडरी वन। सो दिस कंपाउंड, क्योंकि हम एल्डिहाइड यूज कर रहे थे तो इसको हम लोग बोल देते हैं एल्डोल। एल्डोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ALD है ये एल्डिहाइड को डिनोट कर रहा है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, और जो OL है ये अल्कोहल को डिनोट कर रहा है, क्योंकि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को वी सिंपली नोन कॉल इट एज एल्डोल, ठीक है। तो ये जो हमारा रिएक्शन था, दिस इज नोन एज द एल्डोल रिएक्शन, ये जो पहला स्टेप था, ठीक है। तो नाउ दिस इज नॉट द कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है, ये पहला स्टेप था, एंड दिस रिएक्शन इज दिस फर्स्ट स्टेप इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। जब हमारे पास एल्डोल आ गया, तो एज यू कैन सी कि हमारा रिएक्शन का नाम क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। इसका मतलब एल्डोल का कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन मतलब इन केमिस्ट्री टर्म्स, लाइक यू मस्ट हैव, वैसे कंडेंसेशन फिजिक्स में, लाइक वी टॉक अबाउट इन फिजिक्स इज द like when vapors they are changed to the liquid phase, when the phase change happens, the vapor phase changes to the liquid phase, then it is known as condensation. But यहाँ पे ऐसा नहीं होता in chemistry, here it simply means the removal of water, ठीक है। कंडेंसेशन मतलब आप उसको हीट कर रहे हैं और बिकॉज ऑफ दैट रिमूवल ऑफ वाटर इज हैपनिंग। अब वाटर कैसे रिमूव होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो OH है और यहाँ वाला जो H होगा, इस कार्बन वाला जो H होगा, ठीक है, दैट विल गेट रिमूव्ड। तो इनके रिमूवल, वाटर के रिमूवल की वजह से देयर विल बी अ डबल बॉन्ड CHO। द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट वुड बी, बिकॉज देयर आर 4 कार्बन एटम्स, ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 इन। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो बीच वाला प्रोडक्ट है दैट इज द एल्डोल, एंड जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज द एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, क्योंकि फाइनल जो हमारा पास प्रोडक्ट है वो यही वाला है, ठीक है। तो आई अगेन एक्सप्लेन यू द सेम थिंग, ये दो मॉलिक्यूल्स को आप अलग से बनाइए, ठीक है। उसमें जो भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा, one of the alpha hydrogen will simply get it, because it is acidic, so it will get removed and it will attach to the oxygen of the other compound, ठीक है। उसी कंपाउंड में ऐड नहीं करना आपको, उसी मॉलिक्यूल में, दूसरे मॉलिक्यूल में जाके H ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एल्डोल प्रोडक्ट आ जाएगा, और आपको बाकी दोनों कंपाउंड को, इन्हीं दोनों कार्बन्स को ऐड भी करना है, मतलब कंबाइन करना है। यू हैव टू मेक अ बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ दीज कार्बन्स, ठीक है। जहाँ पे एक तो ये कार्बोनिल कार्बन है और दूसरा वाला कार्बन जिससे एसिडिक हाइड्रोजन निकला हुआ है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन जिससे निकला है, इन दोनों में आपको बॉन्ड करना है, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एल्डोल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन। आफ्टर द कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर ऑन हीटिंग, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज द एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। सो दिस कंप्लीट 2 स्टेप प्रोसेस है ये, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। Now, similar thing we will do in the case of ketones also. So I'll first draw the structure. I am simply drawing it in a way जिससे कि मैं आपको properly ये reaction I can be able to show it. This is one molecule of propanone. I am using the ketone that is propanone, and
एज आई सेड एल्डोल कंडेंसेशन में यू हैव वन एल्डिहाइड और वन कीटोन, ठीक है। तो एक ही टाइप का कीटोन होगा आपके पास, जो रिएक्शन हो रहा होगा दो मॉलिक्यूल्स में हो रहा होता है, ठीक है। सो दीज आर द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉन, ठीक है। सो वन so the alpha hydrogen of one molecule of so the alpha hydrogen in one molecule of propanone, जो ये वाला है suppose, it will get because it is acidic in nature, so it will be removed by the base and it will get attached to the oxygen of the other molecule. याद रखना है उसी मॉलिक्यूल में ऐड नहीं करना, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा प्रॉपर। आपको दूसरे मॉलिक्यूल में ओ को ऐड करना है, एच को ऐड करना है दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन में, ठीक है। नाउ यू सिंपली हैव टू अटैच दीज टू कार्बन एटम। एक ये वाला कार्बन है जिससे जिसमें कि आगे एच लग रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा आप याद रखो कि जैसे यहाँ पे ओ से अल्कोहल बन जाएगा ओ एच, ठीक है। सो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो ये जो बॉन्ड होगा ये लग जाएगा, तो एक बॉन्ड इस कार्बन से खाली हो गया, ठीक है। और जब यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकल रहा है तो एक बॉन्ड इस कार्बन से खाली हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों कार्बन एटम्स में बॉन्ड बना देना है, सिंपली उनको अटैच कर देना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे भी वही किया था, यहाँ पे एक कार्बन जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो एक ये वाला कार्बन का बॉन्ड खाली हो रहा है और एक ये वाला कार्बन का जो हमारा एसिडिक क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो बेसिकली देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द अल्फा कार्बन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन इसका यहाँ पे है, ठीक है। सो देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द अल्फा कार्बन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो लेट मी राइट डाउन द फुल रिएक्शन। Oh, sorry for this. Barium hydroxide. You can use NaOH or KOH, anything. सो एज आई टोल्ड यू द फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, उसको कंपाउंड को इस तरीके से लिखिए कि आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो जाए। जैसे मैंने लिखा है, तो मैंने पहले वाले मॉलिक्यूल में जो हमारा कार्बन कार्बन है उसको बिल्कुल एंड में करके लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये दैट विल ओनली कम थ्रू प्रैक्टिस, यू विल हैव टू प्रैक्टिस 2 to 3 और मोर ऑफ दैट क्वेश्चंस एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। दिस इज OH, क्योंकि ओ हाइड्रोजन आके यहाँ पे लग गया है अल्फा, दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, विच हैज कम टू ऑक्सीजन and then you have it has been attached to this carbon, that is the alpha carbon. It has two hydrogen left with the carbonyl carbon. Now this was the aldol reaction. When you will do the condensation of this, क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन OH है, ये वाला OH और ये वाला H, ठीक है। जो H लाइक जो ये अल्फा कार्बन वाला जो H है दैट विल गेट रिमूव, ठीक है। अब इधर का वाला यहाँ वाले H रिमूव नहीं होगा, ठीक है। इस वाले कार्बन का H रिमूव हो जाएगा इस वाले कार्बन का, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी डबल बॉन्ड O। नाउ जैसे सब ऊपर वाले केस में दिस वाज नोन एज एल्डोल, इसके प्रोडक्ट को जो ये बीच वाला प्रोडक्ट है इसको हम लोग कीटोल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक अल्कोहल, तो कीटोन फॉर कीटोन, केट एंड ऑल फॉर अल्कोहल, इस वजह से इसको कीटोल बोलते हैं। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड वुड बी 4 हाइड्रोक्सी 4 methyl pentane 2 on, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली इज सिंपलेस्ट ऑफ द IUPAC नेमिंग। एंड ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज अल्कोहल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, इसका क्या नाम होगा, दैट विल बी 4 methyl पेंट 3 N 2 on, क्योंकि थर्ड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और सेकंड वाले कार्बन पे ये लगा है कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो हमारी नंबरिंग यहाँ से शुरुआत होगी एंड से। अच्छा, बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लोग कीटोल कंडेंसेशन नहीं बोलते हैं बिकॉज बिकॉज aldehydes and ketones they have similar properties, ठीक है। तो because of that similarity we simply call the reaction as aldol condensation reaction, ठीक है। तो as I told you कि aldol और ketol नाम कहाँ से आया है, so the final products they are the alpha beta unsaturated carbonyl compounds. And in this you have to remember कि you only have one kind of aldehyde or one kind of ketone, ठीक है, इसमें दूसरा कहीं पे भी नहीं है। This was the first category of the reactions which are due to alpha hydrogen. Now we are coming to the second category, which is the cross aldol condensation. Similar है, मतलब the mechanism is similar,
क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब एज आई टोल्ड यू द मैकेनिज्म इज कम्प्लीटली द सेम। ठीक है, बस हम लोग क्रॉस इसलिए बोलते हैं, क्यों? बिकॉज व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, देन इट इज नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अभी एल्डोल में क्या हो रहा था? एल्डोल कंडेंसेशन में वी वर हैविंग आइदर वन एल्डिहाइड और वन कीटोन। ठीक है, तो आपस में जो रिएक्शन हो रहा था दैट वाज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर काइंड, सेम मॉलिक्यूल मतलब सिमिलर कंपाउंड। ठीक है, तो अगर हम एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो इट वाज बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, और इट वाज बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉन। ठीक है, तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन था। क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है जब एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा होता है बिटवीन एनी टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ मतलब द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट कंपाउंड में क्या क्या हो सकता है? यू कैन हैव टू एल्डिहाइड्स ऑफ डिफरेंट नेचर, मतलब होंगे दोनों एल्डिहाइड बट दोनों अलग अलग होंगे। जैसे लाइक यू विल हैव इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। ठीक है, दोनों एल्डिहाइड है बट दे आर अलग अलग, अलग अलग एल्डिहाइड है। ठीक है, तो लाइक सपोज इफ आई से, तो इसमें क्या क्या कैटेगरीज बन सकती हैं पहले आप ये देखो। एल्डिहाइड वन विद एल्डिहाइड टू। वन टू आई एम राइटिंग जस्ट टू डिनोट कि ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग कंपाउंड है। ठीक है, और यू कैन हैव कीटोन वन विद कीटोन टू, और you can have aldehyde, any kind of aldehyde with some other kind of ketone। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरीज हमारी बन सकती हैं। अच्छा, बेस्ड ऑन द अल्फा हाइड्रोजन ऑल्सो वी कैन हैव कैटेगरीज। ठीक है, तो मान लो पहली बात तो किस तरीके के कंपाउंड्स रिएक्ट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, दूसरी चीज, बिकॉज यू शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, तभी एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल हो पाएगा, है ना? दैट मीन्स कि लाइक इफ आई वांट टू टेल इट इन द सिंपलेस्ट वे देन आई कैन से कि इफ बोथ ऑफ द मतलब जो दो कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं, if both of them sorry have alpha hydrogen, if both of these compounds जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं molecules, if both of them they have the alpha hydrogen, then you will get four products। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी when I'll do the example then you will be able to understand कि four products कैसे आएंगे। वन मतलब वन कंपाउंड एज alpha hydrogen, so you will have two products, mixture of two products। और यही कंडीशन हो सकती है, मतलब एक ना एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी कंडेंसेशन होगा। ठीक है, तो या तो एक के पास होगा और या तो दोनों के पास होगा। तो आइदर इन दीज रिएक्शन यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स और यू विल गेट फोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अभी लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द प्रॉब्लम क्वेश्चन। तो आई एम टेकिंग टू अल्कोहल, मतलब एल्डिहाइड, सॉरी, टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वन एंड एल्डिहाइड टू। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? वी हैव सी, आई एम टेकिंग अनदर विच इज, एंड वी आर यूजिंग द डाइल्यूट अल्कली, सिंपली हीट। नाउ बिकॉज ना अब आप देखो कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो अगर आप देखो पहले वाले कंपाउंड में, मतलब ये इथेनॉल में, यू हैव थ्री अल्फा हाइड्रोजन, ये जो अल्फा कार्बन के साथ थ्री अल्फा हाइड्रोजन है ये। ठीक है, तो हियर यू हैव थ्री अल्फा हाइड्रोजन एंड हियर यू हैव टू अल्फा हाइड्रोजन इन दिस प्रोपेनॉल। ठीक है, इसका मतलब बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स वी गो इनटू द फर्स्ट कैटेगरी विच विल हैव फोर प्रोडक्ट्स। नाउ ये पॉसिबल कैसे होगा कि जो हमारा सपोज करो हम इसको ए बोलते हैं, पहले वाले को एल्डिहाइड को, एंड दूसरे को बी बोलते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी। तो क्या होगा कि हाउ विल वी गेट फोर प्रोडक्ट्स? बिकॉज ए ऑल्सो हैज अल्फा हाइड्रोजन, तो ए का ए के साथ में भी एल्डोल होगा। ठीक है, बिकॉज सी देयर आर मॉलिक्यूल, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने एक कंटेनर लिया, आपने उसमें ए भी डाल दिया और बी भी डाल दिया। ठीक है, तो अब ए कोई एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, यू विल हैव लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ए के खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बी के खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना? तो यू कैन नॉट कंट्रोल कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में एल्डोल करेगा। ठीक है, तो
यू कैनॉट कंट्रोल इवन अ सिंगल रिएक्शन, ठीक है, तो वो बहुत रैंडम होता है, एंड दैट इज वाई वी आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्या क्या होगा, बिकॉज दिस ए मॉलिक्यूल will give will proceed with aldol with the A molecule. Now B के पास भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, that is why B will also give aldol product। ठीक है, एंड लास्टली A जो होगा will give the one product will B, and B will give one product। अब आप कहेंगे कि अब A और B, like why have I mentioned these two different? ठीक है, तो when I'll do this reaction then you will be able to understand this। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ एल्डोल वाले प्रोडक्ट्स को लिख लेते हैं। सेल्फ एल्डोल मतलब हम लोग इन दोनों चीज़ों को बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। क्यों? क्योंकि ये आपस में ही रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक ही मतलब सेल्फ मतलब खुद से ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। और ये अलग अलग से रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट विल हैपन है, सपोज ए इज डूइंग दी सेल्फ एल्डोल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड। एंड इफ वी आर कंसिडरिंग द सेल्फ एल्डोल ऑफ बी, बी के साथ सेल्फ एल्डोल हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट वुड बी। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं दोनों के नाउ। अच्छा, लाइक व्हेन ड्यूरिंग द स्कूल एग्जाम्स द टीचर्स जनरली एक्सपेक्ट कि द स्टूडेंट शुड राइट बोथ ऑफ द स्टेप्स। ठीक है, जो एज आई टोल्ड यू दैट इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो टीचर्स एक्सपेक्ट कि द स्टूडेंट शुड नो बोथ द स्टेप्स एंड दे शुड राइट बोथ द स्टेप्स। ठीक है, तो स्कूल के लिए यू शुड बी अवेयर ऑफ बोथ द स्टेप्स ऑब्वियसली, but like if you are sitting in a competitive examination, then obviously you don't want to waste time writing both of the steps, you directly want to proceed, you directly want to go to the product। ठीक है, तो उस केस में आपको एक सिंपली एक ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हो, लाइक सपोज डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, दिस इज द ट्रिक आई एम टेलिंग यू, ऑब्वियसली यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, दोनों स्टेप्स हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। ठीक है, बट ये बस एक ट्रिकी लाइक ट्रिक है कि आपको तुरंत यू कैन जस्ट गेट टू द प्रोडक्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। और द ओके सेकंड वन इज यस, आई एम डूइंग द सेल्फ एल्डोल। ओके, तो व्हाट विल हैपन इज, क्योंकि आपको पता है कि एंड में डबल बॉन्ड लगना है, क्योंकि एंड में जब कंडेंसेशन होगा एल्डोल का तो वहाँ पे डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा। तो आप क्या करो, यहाँ से इस ओ को हटा दो, और यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन हटा दो। ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना, और इफ आई कैन सिंपली, अगर हम इसको और ओपन करके लिखेंगे, तो आप क्या करो, एक ये जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो आप अल्फा अल्फा कार्बन से दो हाइड्रोजन आप रिमूव करो, और यहाँ से डबल बॉन्ड ओ रिमूव करो। ठीक है, और ये रिमूव करने के बाद दोनों को कंबाइन कर दो, मतलब ये वाले कार्बन को, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाले कार्बन को और ये वाले कार्बन को। ठीक है, सो दिस इज द कार्बोनिल कार्बन एंड द सेकेंड वन इज द अल्फा कार्बन। इन दोनों को कंबाइन कर दो डबल बॉन्ड के थ्रू, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वन एच इज देयर, डबल बॉन्ड CH। तो आपको मतलब अल्कोहलिक एल्डोल प्रोडक्ट नहीं बनाना पड़ा, आपने डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, आपको सिंपली डबल बॉन्ड को यहाँ से ओ रिमूव करना है, और उसी कार्बोनिल कार्बन पे यू सिंपली हैव टू ऐड दिस, कंबाइन दिस अल्फा कार्बन, ये H2O रिमूव करके। ठीक है, तो नाउ सिमिलर ट्रिक आई विल बी गोइंग टू अप्लाई फॉर द सेल्फ एल्डोल ऑफ दिस थिंग आल्सो, प्रोपेनॉल। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने सेम चीज करी है, एंड दीज प्रोडक्ट्स आर नोन एज सेल्फ एल्डोल। ठीक है, तो सपोज इथेनॉल इज ए एंड प्रोपेनॉल इज बी। ठीक है, तो ये कैसे आया, ये ए ए का आया, ये बी का आया। ठीक है, नाउ दीज वर द टू प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्फ एल्डोल। नाउ कमिंग टू क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, एज आई टोल्ड यू टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट। ठीक है, तो अब आई एम गोइंग टू ड्रॉ देम प्रॉपर्ली CH। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं ए को पहले लिखूंगी, जैसे मैंने भी यहाँ पे ए पहले लिखा, फिर बाद में बी को लिखूंगी, और बाद में बी को ऐसा लिखूंगी कि हमारा अल्फा कार्बन जो है वो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, वो मतलब बाहर की तरफ है, उससे आपको बॉन्ड्स क्लियरली दिखाई पड़ेंगे। आई मीन यू कैन राइट इट एज यू वांट ऑब्वियसली, दैट विल नॉट मैटर, लेकिन ऐसे लिखने से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि व्हाट टू कार्बन यू वांट टू कनेक्ट। ठीक है,
तो ये CH3 है, CH2 एंड CHO। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, तो ये तरीका आप लोग सीख लीजिए, इट विल बी इजियर फॉर यू इन द एग्जाम्स। पहले मैंने ए लिखा है, फिर मैंने बी लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी का अल्फा हाइड्रोजन हटाएंगे, एज आई टोल्ड यू इन दिस ट्रिक कि आपको अल्फा हाइड्रोजन हटाने हैं। सो यू सिंपली रिमूव दीज टू अल्फा हाइड्रोजन्स and you remove this O and combine this carbon with this carbon। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, लेट मी राइट इट डाउन। डबल बॉन्ड, क्योंकि ये O चला गया, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O से ऑक्सीजन हैज बीन रिमूव्ड। ठीक है, सो मैं पहले वाले कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव कर रही हूँ और दूसरे वाले कंपाउंड से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर रही हूँ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO। नाउ व्हाट आई विल डू, कि एज आई टोल्ड यू कि अभी आप कह रहे थे कि ए बी, मतलब लाइक आई हैव रिटन ए बी एज टू डिफरेंट क्रॉस एल्डोल कंपाउंड्स, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज रीडिंग दिस। अब हम क्या करेंगे, पहले मैंने ए पहले लिखा था, बी बाद में लिखा था। ठीक है, अब व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इट इन द रिवर्स ऑर्डर, आई विल राइट बी फर्स्ट। ठीक है, तो बी जो आप पहले कंपाउंड लिख रहे हो, आप उसको ऐसा लिखेंगे कि आपका जो कार्बन, ये कार्बन है, वो ऐसा दिखे। ठीक है, पहले मैंने बी लिखा, अब मैं ए लिख रही हूँ। ए हमें ऐसा लिखना है कि लाइक यू आर एबल टू गेट द अल्फा कार्बन, सॉरी दिस इज सिंपल सिंगल एच, राइट, CHO। ठीक है, ये हमारा ए है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन हटाएंगे, ये वाला, एंड पहले वाले मॉलिक्यूल से ये ऑक्सीजन हटाएंगे, वाटर रिमूवल हो रहा है कंडेंसेशन में। ठीक है, तो H2O विल गेट रिमूव्ड एंड सिंपली यू विल कंबाइन दिस कार्बन विद दिस कार्बन। ठीक है, तो अब हम प्रोडक्ट लिखते हैं, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O हैज बीन रिमूव्ड एंड दिस C एज 1H। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी कि ये जो दोनों हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं क्रॉस एल्डोल वाले, दे बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वी कैनॉट से कि if two compounds are reacting and both of them have alpha hydrogen, then we will get two different products। like हमें like पहले वाले में क्या हो रहा है कि alpha hydrogen is being removed from the B वाला molecule, and in the second one what is happening is alpha hydrogen has been removed from the A molecule। ठीक है, तो कौन से मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और कौन से वाले मॉलिक्यूल पे जाके ऐड हो रहा है, ठीक है, उससे उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, द ऑर्डर एक्चुअली मैटर्स। So that is why here we are getting two products and both these products are cross aldol products। Cross aldol मतलब the two molecules are different, self aldol and cross aldol। So this has come from A, B and this has come from B, A। ठीक है, so now these are the four products that you will get when both the molecules have alpha hydrogen। ठीक है, अच्छा, now we will see one case जिसमें कि one molecule has alpha hydrogen। Obviously as I told you कि यहाँ पे दो एल्डिहाइड की जगह पे दो कीटोन भी हो सकते थे। ठीक है, द रिजल्ट्स वुड हैव बीन सिमिलर, बस आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर बदल जाएगा, यू विल हैव एवरीथिंग एल्स एज सेम। ठीक है, नाउ वी विल डू वन मोर एग्जांपल जिसमें कि यू विल हैव वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन। ठीक है, जो हमारा थर्ड कैटेगरी है, एज आई डिस्कस्ड हियर, यहाँ पे ये हमारा थर्ड कैटेगरी है, राइट। तो वी विल डिस्कस दिस कैटेगरी एंड व्हेन इट हैज वन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जो हमारी यहाँ की सेकेंड कैटेगरी है। ठीक है, दिस इज बेंजल्डिहाइड and this is the ketone that I was talking about। तो one aldehyde and one ketone। ठीक है, they can also react to give the cross aldol product। now as you can see कि इसमें हमारे इस वाले पे A वाले कंपाउंड पे you do not have any alpha hydrogen, in the case of B you have that alpha hydrogen। ठीक है, तो in this case only two products are possible। how, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बी हैज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसका मतलब बी जो होगा वो आपस में भी सेल्फ एल्डोल करेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सेल्फ एल्डोल तभी हो सकता है जब दैट मॉलिक्यूल हैज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो बी विल हैव सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। तो व्हेन आई एम सिंपली डिनोटिंग द रिंग एज पी, so this is the product of self aldol। ठीक है, you can simply draw it yourself using the way that I have taught you, that would be easy। ठीक है, so this is the self aldol product and मतलब self मतलब I am talking about क्योंकि B has alpha hydrogen, so B will now one product would be of A with B। ठीक है, B with A नहीं हो पाएगा क्योंकि A के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
इस वजह से 2 प्रोडक्ट्स कम हो गए। इस केस में द प्रोडक्ट वुड बी, कुछ नहीं किया है यहाँ पे, बस सिंपली वही वे से दैट लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस एग्जांपल, प्रीवियस रिएक्शन। सिमिलरली वी हैव simply combined the 2 carbon atoms. ठीक है, तो these are the 2 products which are possible in this case. इसमें क्या हो रहा है? This is the cross aldol product. So this was all about the aldol condensation and the cross aldol condensation. Now in the next class I will try to do some examples related to these aldol condensation, because practice because it will only get to you with the help of practice. So this was all for today. Let's meet in the next class. Thank you.